Hmm? It's fine. Now, up to now, we saw a little comparison from a very global perspective, and we have come to a point where we see that precisely for certain reasons, like historical lineage, the history, the long-standing history, at the same time being latest with cognizance of everything in today's perspective, and the broadness of teachings, depth of information, verifiability, being scientifically told truth, applicable to everybody irrespective of time, place, circumstance, and without reserving anything, complete. Everything is there in Sanatan Dharma. You have any question in this respect? Now we are from Sanatan Dharma, or we are born in India, or we are so-called Hindu. For that, are we saying that Sanatan Dharma is having these attributes and kind of glorifying it or discriminating it? Or is it a very straightforward conception, can be understood by anybody without ego, unnecessary ego? For us, it may be natural to accept, but see it from a global perspective. From a global perspective, also, it's a very reasonable faith. We talked about reasonable faith previously also. So, is it not a reasonable faith? It's a reasonable faith because there is no conception of undue discrimination and violence. It's all purificatory process from within. That's why Sango Pangastra Parshadam, Yajnehi Sankirtana Prayahi, means the method or mechanism is so soft. It's sacrifice. Yajna means sacrifice for others. Being very compassionate to everybody. Now, there was a shastra or a weapon used by um, incarnations of Godhead in our Sanatan Sanskriti. Tell me any incarnation which is not having a weapon. Huh? Yes, there are few. Vamana Avatar in Satya Yuga. So Vamana Avatar represented a dharma of Brahminical mode of goodness, sattvic conception. But the dharma which is meant for paritranaya sadhuna, vinashaya cha dushkrutam. Vinashaya dushkrutam means killing the dushkruti. Dushkruti means one who is demoniac, those forces. So Vinashaya is part of dharma, and lots of our incarnations, with some exceptions, have carried weapons. So Parshuram, Lord Ram, Balaram, Lord Krishna, Varaha Avatar, hmm? Narsingha Avatar, yes, all these, they had weapons. But uh, latest Sanatan Dharma Swarup in terms of this Chaitanya Mahaprabhu's mission of chanting of holy names as Yuga Dharma, the weapon is not some Sudarshan Chakra or something. Weapon is chanting of the holy names. So by that chanting, the purificatory process, killing of demoniac nature is expected, not killing of a body, killing of a bodily existence. So therefore, this is most practical kind of solution given by God Himself in this age. So then, therefore, we come to a conception of Sanatan Dharma as universally acceptable uh, and scientific methodology which is applicable to everybody irrespective of caste, creed, religion, birth, nation, time, place, circumstance. Everything has a reasonable um, conception or science, I may say. Conception is again it is prone to interpretation, representation, misrepresentation, but knowledge and science, Krishna says, jnanam vijnana sahitam.
Yajñatva mokshase ashubhat. All your troublesome things will go away by knowing this knowledge, jnanam vijnanam. So the conception is so beautiful, so amazing. There is no extremity in it. There is no rejection for somebody. So now the question, when it comes to Sanatan Dharma now, within Sanatan Dharma also there is variegatedness. There are people who may say you worship this god, you worship that god, you do this seva, you do that particular vrat, you do this tapasya, you follow सोमवार को ये उपवास, मंगलवार को ये उपवास, बुधवार को ये उपवास. So many things are there. तुम घर में वो लक्ष्मी का व्रत करो, तुम सत्यनारायण की पूजा करो, तुम गणपति का ये करो, अधिष्ठान करो. So many things are there. So why are they there? That is, now that comes to the Sanatan Dharma itself. So within Sanatan Dharma, there is a conception of worship. Whom to worship? The connection of God comes by an act of worship, isn't it? So yoga means what? You want to connect. How do you connect? How do you connect with a person, day-to-day person? Maybe first you speak with him, you smile at him, you greet him, you use proper words to communicate with him. And then when your relationship is better, if he is a worshipable personality, you have a way of dealing with that person, making relationship. So worship is kind of that approach. So in Sanatan Dharma, there are worships and there is division. There is something called as Vidhi. Vidhi means according to scriptural guidance. Whether the way of worship is established by some scriptural quote, some authority, somebody guiding, this is the way of doing it. Some book, some verses in the book, that is Vidhi. The other one is Avidhi, ignoring scriptural guidance. So both these are explained in the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita, the question asked by Arjun at the start of 17th chapter. 16th chapter, Krishna concludes Daiva Asura Sampada Vibhagayo. Daiva Asura means those divine and those are demoniac. What are their characteristics? Divinity means what? Demoniac nature means what? परित्राणाय साधु नाम. साधु कौन है? विनाशाय दुष्कृतम. दुष्कृति कौन है? दुष्ट कौन है? तो इसका डेफिनेशन 16th चैप्टर में आता है. The end of the 16th chapter is, yesterday we saw that verse, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनम कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्. Bhagavan says that these are three gates to hell: lust, greed and anger. You should give them up. Why do you want to go to hell? So there Krishna says, in short, the demoniac means people who are acting like this. काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में वो जो काम करते हैं पर्सनल एजेंडा और गेन के लिए, exploiting others, that is demoniac. So Krishna further clarifies it that यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, by giving it up, वर्तते कामकारतः, according to no vidhi, his own mind, ignoring scriptural guidance. न ससिद्धिम अवाप्नोति, he doesn't obtain perfection. न सुखम, no happiness. न paramgati, no ultimate destination after death. So there are two things. यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, vidhi and उत्सृज्य. Now immediately Arjun becomes confused. Krishna has given him instruction also. Tasmat, I am telling you, because there is no perfection in the other part, therefore I tell you, Krishna says, Tasmat Shastram Pramanam Te. Take scriptural guidance. Karya Akarya Vyavasthito. Understand from scriptures what should be done, what should not be done. You asked a question.
Why a certain way of paying obeisances? So that is vidhi. I explained to you the vidhi. So Krishna says, you know such scriptural guidance. Tasmat shastram pramanante karya akarya. What should be done, what should not be done. व्यवस्थित हो, ठीक से समझो. ज्ञात्वा, by knowing, shastra vidhanoktam, what is given in the shastra as a vidhan, as a guiding principle. Karma kartum iharhasi, you should do your activities. Krishna finishes 16th chapter on this. If you are okay, you have demoniac propensities, you want to go ahead now, so you follow a vidhi. Don't go by your own whims and fancy. So we say that there are whimsical ways of worship without giving any importance to guidance in scriptures. And so Arjun asks Krishna at the start of the 17th chapter, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः. So Arjun asks, oh, but I see that there are so many people who don't even bother to see what is scriptural guideline. They don't know anything. They just hear from here and there, or conceive their own way of worshipping the things. So Krishna, one who has, you said that यह शास्त्र विधि उत्सुज्य वर्तते कामकारता. He asks ulta. He removes कामकारता word. He uses the word श्रद्धयान्विता. आप तो बोल रहे हैं काम इच्छा से, कुछ इच्छा से वो अपने मनगढ़ंत ढंग से उसने विधि तोड़ दिया और वैसे ही वो कर रहा है, उसको परफेक्शन नहीं मिलेगा. बट व्हाट अबाउट देम हु हैज फेथ? नाउ किसी गांव में there is a small temple and people say that there is a history and there is some small stone there, and that stone is colored with some red color and people go and worship there and they have faith that it works. What about them? That is a question. So that part of it Krishna explains. That explanation is coming up in the next slide. But before that, what is scriptural? What is perfection? That we should know. Vidhi. So according to Vidhi, there is impersonal Brahmavadi conception of God. Impersonal means God is not a person, God is an energy, all-pervading energy. It is there in every atom and everything is controlled and seen by that energy, and that energy is maintaining the whole world. It is creating, maintaining and destroying the whole world. It has no form as such to be conceived in that worship, way of worship. They just have conception of God's all-pervading nature, जिसको निराकार, निर्गुण बोलते हैं. That conception is part of Vidhi. Be very, very sure that what it means. Brahmavadi, this word you keep in mind. Impersonal or Brahmavadi conception. There is going to be a similar conception on that side also, a Vidhi. There is a conception in Vidhi also. So Krishna in 13th chapter of Bhagavad Gita has explained this. Impersonal conception also. Impersonal part of it he has explained. So that is in 12th chapter also it comes. That sarvatragam achintyoyam avikaryoyam. Achintyoyam means inconceivable. Sarvatragam means going present everywhere, omnipresent, omniscient, omnipotent. Have you heard these words? Omniscient means one who is aware of all sciences, knows everything. Omnipotent means his potency is everywhere. His area of influence, his potential is everywhere. He can do anything with that potential. Omnipresent means he is present in every nook and corner, smallest. Anoraniyam Mahato Mahiyam. He is greatest, he is smallest of the smallest, and he is greatest in the greatest. So like that conception of God, impersonal conception of God is there. The object of worship is Brahma Jyoti. Nirakar, Nirgun, Nirvikar, Kaivalya, the spiritual sky. There is no conception of
person. Goal is Sayujya Mukti. There are 5 kinds of liberations. Liberation from birth, old age, disease, death. There are 5 kinds of liberations. Sayujya, Samipya, Salokya, Sarshti, Sarupya. Sarupya, Sayujya, Samipya, Salokya, Sarshti. 5 kinds of mukti are there. All of them are different ways of living in spiritual world. Out of that, there is one mukti which is not considered by the other side, which is considered by this side. Vidhi ka other side. Vidhi ka other side, I am yet going to explain. But the mukti, which is 4 muktis are in that part, Vidhi ka that part, 1 mukti is on that this part. This mukti, Brahma Jyoti is the goal. Sayujya mukti means merging into that Brahma Jyoti and finishing as such our false ego existence. Destination is, according to scriptures, have to fall back again. But it is accepted. Fall back again means come to material world again. Or sometimes they can go to a upper level also. That is also possible. There are both examples in scriptures. The other part of Vidhi is personal conception of God. God is person also. His influence is personal also, and you can worship him as a person also. So that is personal conception. The object of worship is Krishna, Rama, Narsinga, Varaha, Vishnu, sometimes Bhagwan Shiv, Bhagwan ka personal conception. So personal conception, the goal is devotion, uninterrupted, unmotivated devotion or liberation from material desires. Destination is heaven, where one can live for a long time, but again, heaven one has to come back. If the goal is material desires while worshipping God, then he goes to heavenly planets. If the goal is liberation, then he goes back to spiritual world. Understood? Vidhi. Then there is this avidhi purvakam. One conception is Mayavadi. You heard the Brahmavadi conception? There is also a Mayavadi conception. Mayavadi conception is avidhi purvakam. Brahmavadi conception is vidhi purvakam. Mayavadi conception is object is same, goal is same as Brahmavadi, but destination is hell. Why? The subtle difference is Brahmavadi doesn't reject vidhi of personal worship, doesn't reject personal form of God, doesn't say that personal form of God is Maya. He says that he accepts that personal form of God is there and it is not part of this material creation. It is transcendental. What is transcendental? A body beyond birth, old age, disease, death. God never becomes old aged. God never dies. If God would die, person, Krishna would die or Ram would die, then why would we worship him today? If that Krishna person came 5,000 years back and he has gone from our eyesight, then if he is dead, then why should I worship him? If there is no person with name Krishna today, transcendental God, personality, who hears you, then there is no conception of, no meaning of worship. So the Brahmajyoti, Brahmavadi person worships personal form also. But his goal is mukti. He doesn't reject the conception of God. But Mayavadi, he rejects that there is a personal form of God. He thinks that that God also is a person who takes form of that unlimited for some time. That unlimited energy is coming for some time in a personal form, and then it is like us only. One day he dies, that form. Bhagavad Gita doesn't
support this. Bhagavad Gita says, no, this is not correct. Avajananti ma mudha manushim tanumashita. Avajananti means they don't know, और अवज्ञा भी बोलते हैं. अवज्ञा करना मतलब इंसल्ट करना. अवजानंती माम, मुझे. कृष्ण बोल रहे हैं ना, मुझे. मूढ़ा, मूर्ख लोग. अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम. They feel that I am just like them in a मनुष्य शरीर. मनुष्य शरीर is birth, old age, disease, death. Apparently I look like a human being. Manushim tanumashritam. Param bhavam, but there is a higher absolute nature of my appearance. Param bhavam ajananta. Mama avyayam. Avyayam. Vyaya means death, dwindling. Avyaya means not dwindling and meeting death. Mama avyayam anuttamam. मेरे से उत्तम कोई भी नहीं है. ये वो समझ नहीं पाते, इसीलिए वो लोग मूढ़ा, मूर्ख है. कृष्ण डिबंक्स दिस मायावाद. Then Krishna says, what is that verse? I am forgetting. Let us see if I recall that verse. He says that earlier I was impersonal, then I have become a person. And then after my disappearance, I have again become impersonal. This is not buddhi. Manyante mam abuddhaya. Avyaktam, vyaktim apannam. Avyaktam means I was avyakta, nirakar, nirgun. Then vyaktim apannam. Then I became a vyakti. अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते. एज सच मान्यता है या मानते हैं. माम, मुझे. अबुद्धया, जिसको बुद्धि नहीं है वो. तो भगवद गीता, I gave two examples. There are many scriptures who debunk this, that man and God are similar in nature. No, God is God, eternal. His body is not like us, which will die. His body is eternal. Otherwise, why he is God? God's body comes from spiritual world to show us that I exist like this, you also exist like me. Krishna says in Bhagavad Gita that mama sadharmyam agata idam jnanam upashritya. When you take shelter of this knowledge, mama sadharmya agata, मेरे जैसा ही व्यक्ति हो जाता है वो भी. मेरे जैसा मतलब जन्म मृत्यु के परे, भगवान के जैसा ही उसका शरीर बन जाता है. That is spiritual conception. So he wants to show this is how a spiritual body looks. See, it doesn't have death. Nobody can kill me. Has someone killed Krishna? For external reasons it is shown. But there is an explanation of that also, how it is for misdirecting people into a different faith. Krishna takes care of that also. One who is wants to get diverted, he can get diverted. He gives him sufficient reasons to get diverted. Mayavadam asat shastram. Padma Puran says, Mayavadam asat shastram. Mayavad is asat shastra. सत्य नहीं है. चैतन्य महाप्रभु का अवतार जब हुआ तब उन्होंने बोला कि अगर कोई बोलता है कि मेरा रूप नहीं है तो वो मेरे सर के ऊपर डंडे से पीटता है मुझे, ऐसे मुझे लगता है. तो इट्स एन ऑफेंस, देयरफॉर दे गो टू हेल. It's an offense towards Supreme Personality of Godhead. So Mayavad, that is avidhi purvak. The other are natural propensity. मुझे लगता है मैंने यहां इस मंदिर में जाके एक कुछ बोला था, मन्नत मांगी, नवस बोलला आणि माझी इच्छा पूर्ण झाली म्हणून मला इथे श्रद्धा आहे. मी ह्या फोटोची पूजा केली, आरती केली म्हणून मला पैसे मिळाले. म्हणून दॅट्स वाय आय एम हैविंग फेथ. दिस इज कॉल्ड नेचुरल प्रोपेंसिटी. मुझे लगा ऐसा, मुझे महसूस हुआ, मुझे रेसिप्रोकेशन मिला, इसीलिए मैंने किया. ऐसा भी होता है. तो व्हाट अबाउट दैट? ऑब्जेक्ट इज ड्रिवन बाय डिजायर्स, गोल इज अचीवमेंट ऑफ डिजायर्स, डेस्टिनेशन इज
explained below. Natural propensity. तो कृष्ण says that यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते श्रद्धयान्विता तेषाम निष्ठा सत्व माहो रजस्तमा. दे हैव सात्विक नेचर. नेचर मतलब अभी आ गया ना, कल कल जो बोला था कि वेज ऑफ लिविंग, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण. सो दे आर बाइंडिंग. वी सॉ दे आर नॉट लिबरेटिंग, बाइंडिंग. So how they get bound to a particular way of worship? If they are in Sattva Guna, they develop faith in Devi Devtas, Brahma, Shiva, Ganesh, Durga. They have sattvic desires and their destination is heavenly planets. They go to heavenly planets. Although it is not according to Vidhi. So now this may be shocking for many Indians that their way of worship is not the prescribed way of approaching any god according to scriptures. For this, the Bhagavad Gita also says that येपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता. ये अपि अन्य देवता मीन्स ऐसे देवी देवता अलग अलग. भक्ता भक्ति में, यजन्ते पूजा वर्शिप करते, अन्य देवता तेपि माम एव कौन्तेय. दे ऑल्सो वर्शिप मी ओनली. तेपि माम एव कौन्तेय भजन्ति अविधि पूर्वकम. अविधि पूर्वक, ये अविधि पूर्वक है. इट इज लाइक देर इज अ सपोज आपका आरटीओ में कुछ काम है. आरटीओ में देर इज अ मेथड ऑफ गेटिंग थिंग्स डन and you have a method of obtaining license or method of obtaining no objection certificate for transferring to other states or changing a hypothecation. आपने कर्जा निकाला था बैंक से, अभी कर्जा खत्म हो गया, अभी वो गाड़ी वो बैंक के हाइपोथिकेशन पे थे, आपके नाम पे करना है. तो there is a method. Now you go there and bribe a person. Is it method? That is what Krishna is saying. Their purpose is different. देवी देवता का विधि पूर्वक वर्शिप 3rd चैप्टर में बताया कैसे करना है. विधि क्या है? पर्सनल डिजायर्स के लिए जो देवी देवताओं को ब्राइब करने जैसा उनको वर्शिप अपने मनगढ़ंत ढंग से करता है, देवी देवता दे देते हैं ऐसे उसको लगता है, परंतु वो देवी देवता नहीं दे रहे. भगवान बोल रहे हैं मैं ही देता हूं. वो श्रद्धा के साथ मैं ही देता हूं. यो यो याम याम तनुम श्रद्धयार्चितुम इच्छसि तस्य तस्य अचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्. जो जो अपनी अपनी श्रद्धा, यो याम याम जिसके साथ, अचलाम अनफ्लिंचिंग श्रद्धा, फेथ wants to develop. जो जिस वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट को श्रद्धा प्राप्त करना चाहता है, तस्य अचला श्रद्धा, उसके प्रति अचल श्रद्धा, तामेव उनको मैं विदधामि अहम, मैं देता हूं उनको. तो भगवान उसको उसमें श्रद्धा देते क्योंकि भगवान को अश्रद्धानस्य संशयात्म विनश्यति नहीं देखना है उसका. अरे तू कहीं पे श्रद्धा रख रहा है ना, रख, मैं देता हूं तुझे श्रद्धा. मैं देता हूं क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में वो देवी देवता के हृदय में भी है और इनके हृदय में भी थे. परमात्मा रूप में उनका इन्फ्लुएंस सब पे है, इसीलिए वो ही श्रद्धा जागृत करते हैं. तो किसी की साई बाबा के प्रति, किसी ये बाबा के प्रति, ये सारी श्रद्धा जागृत करने का काम भगवान करते हैं. और ये श्रद्धा नेचुरल प्रोपेंसिटी से रेसिप्रोकेशन के रूप में होता है. मेरी इच्छा है, मुझे चाहिए, कौन देगा? भगवान ही देंगे अल्टीमेटली. मेरी इच्छा डूब के मरने की है, कौन डुबाने के लिए पानी देगा और कौन डूबने जैसा शरीर देगा? भगवान ही देंगे. पर भगवान चाहते हैं क्या ये? नहीं. इसीलिए वो अविधि पूर्वक बोलते हैं. दे वो ही रहे. मर्डर करने के लिए चाकू कहां से आएगा? भगवान के क्रिएशन से ही आएगा. पर क्या चाकू दिया इसका मतलब भगवान
मर्डर करे, सब लोग ऐसा चाहते हैं क्या? तो इसी प्रकार से ये नेचुरल प्रोपेंसिटी जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में उस जीव को फंसाती है, पैसे के लिए, किसी चीज के लिए। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता, मैं प्रिस्क्राइब करता हूं जेल से छूटो, जेल का खाना खा के अच्छा खाना मिलने के लिए प्रयत्न मत करो। दैट इज द सेंस बिहाइंड अविधि पूर्वक, इट्स अ हायर सेंस। हाँ, ये किस चैप्टर का है? क्या? ये 17 चैप्टर में। मतलब मुझे तो लगता है जो देवताओं की जो ये बताई गई तो ये तो वो उन देवताओं के बारे में, मतलब जो स्वर्ग के देवता हैं, इंद्र या फिर शनिदेव वगैरह जो होते हैं, वो मतलब सिर्फ उन्होंने डिजायर को पूरे करने के लिए पूछे जा रहे हैं, उनका पूजन वगैरह, क्योंकि नहीं, बट ऐसा भगवत गीता में डिस्टिंक्शन नहीं किया है। भगवत गीता क्या कहती है, ये भी अन्य देवता। तो देवता में हम लोग सूर्य देवता ऐसा वैदिक वर्ड्स है उनको रेफरेंस करने के। भगवान क्या ये भी देवता है या भगवान है? देवता है, और हर एक देवता का तत्व है। तो चैतन्य चरितामृत में तत्व सिद्धांत बताए। तत्व मतलब विष्णु तत्व, शिव तत्व, देवता तत्व, जीव तत्व, लक्ष्मी या शक्ति तत्व। तो ये तत्व जो है ना, अचिंत्य भेदाभेद रूप से एक और अनेक है, सेम है और भिन्न है। तो जब आप ऐसा कहते हो तो वो कंसेप्शन विधि पूर्वक उस साइड में आता है, ब्रह्मवाद में आता है वो। आर यू गॉड? वाई? ब्रह्मवादी में ये कंसेप्शन आता है। ब्रह्मवादी में बिकॉज यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, यू आर ऑल्सो गॉड, बट यू आर स्मॉल GOD गॉड, देर इज अ बिग GOD गॉड। तो उस सेंस में यू आर वर्शिपेबल सिंस यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, सो यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। सिमिलरली गुरु इज मर्त्य शरीर में होते हैं, परंतु गॉड जैसे ही वर्शिपेबल होते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स ऐसा बोलते हैं कि गुरु का अपराध करने से भगवान भी नाराज हो जाते हैं, वैसे ही देवी देवताओं का अपराध करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए एक विधि है इन सबको समझने का, एक बहुत बड़ा विषय है ये, बहुत बड़ा विषय है, और उसके अलग अलग एंगल है। और किसी एक एंगल से ही देख के दूसरा एंगल रिजेक्ट करना, ये मायावाद है। तो जो प्रॉपर ये है अंडरस्टैंडिंग, वो ये है कि देवी देवताओं की भौतिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना करना ये अविधि पूर्वक है। परंतु भगवान 3rd चैप्टर में बोलते हैं कि भावयन्तवः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवी देवताओं को मनुष्य अप्रोच कर सकते हैं यज्ञ के रूप में, और उस तरह से देवी देवता मनुष्य मात्र को उनको परम श्रेय, परम कल्याण प्राप्त करने के लिए जो भी चाहिए वो देते हैं। ये 3rd चैप्टर में बोला है भगवान ने। हाँ, करेक्ट, दैट इज विधि पूर्वक, एंड दिस इज अविधि पूर्वक, दिस इज नेचुरल प्रोपेंसिटी। तो ये अविधि पूर्वक भगवान बोल रहे। गॉट इट क्लियर? राजसिक इज यक्ष रक्ष, यक्ष राक्षस और मनुष्य, इनकी पूजा। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि यजन्ते सात्विका देवाः, देवी देवता की पूजा सात्विक लोग करते हैं। यक्ष रक्षांसी राजस, राजस लोग यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हम देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा गुफा में कोई राक्षस की पूजा करता है, और कोई किसी मनुष्य को ही भगवान मान के उसका फोटो लगा के उसकी पूजा करता है, भगवान है करके। तो वो जीव तत्व को भगवान भगवत तत्व मानता है। वो क्या है? रजोगुण, रजोगुणी पूजा है। तो 3rd टाइप इज प्रेतान भूतगणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। प्रेत भूत इसकी उपासना भी लोग करते हैं।
देखते हैं ना हम लोग, करनी के लिए जादू टोना तंत्र मंत्र किया। ये सब तामसा जना, तामसिक लोग भूतों प्रेतों की दुष्ट आत्माओं की ये करते हैं, पूजा करते हैं। और उसमें सात्विक लोगों का गोल सात्विक डिजायर्स, मतलब आप देखो देवी देवताओं की पूजा करने वाले मोस्टली लोग सात्विक होते हैं। राजसिक लोग जो है उनको ना उनका गोल मटेरियल डिजायर्स रहता है मोस्टली। देवी देवताओं को भी कभी कभी राजसिक लोग कुछ प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, या कितने सारे असुर है जिन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने पूजा की। तो ये सात्विक राजसिक, राजसिक ज्यादा सात्विक, ये सब कैटेगरीज में ये आता है, मिक्सचर ऑफ दीज वर्शिप्स। बट द डेस्टिनेशन ऑफ वर्शिप इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ देम। तामसिक वर्शिप इज टू डिस्ट्रॉय समबडी। हाँ, इसका पैसा उसको जाना चाहिए, इसका मृत्यु हो जाना चाहिए, ऐसे टाइप का। तो कृष्ण सेज दैट यान्ति देवव्रता देवा, यान्ति देवव्रता देया। देवव्रत मतलब देवी देवताओं की पूजा का व्रत जो लेते हैं, यान्ति देवव्रता देवा, वो उसी देवी देवताओं के लोक में जाते हैं। अगर गणेश जी का सच्चा भक्त है तो गणेश जी जहां है ना उस लोक में जाएगा वो, उसकी पूजा के कारण, क्योंकि वो उनको भगवान मानता है। वो जहां पे भगवान करके जिनकी पूजा होती है उस लोक में वो जाएगा। सूर्य की उपासना करने वाला, उसका सूर्य का निस्सिम भक्त प्रेम जो करता है उनसे, वो सूर्य लोक में जाएगा। यम की पूजा करने वाला यम लोक में जाएगा। लक्ष्मी की पूजा करने वाला लक्ष्मी जहां पे है वहां जाएगा। यान्ति देवव्रतान देवा, पितृन यान्ति पितृव्रतान, जो पितरों की पूजा करते हैं वो जहां पे उनके पितर है वहां जाएगा। भूतानी यान्ति भूतेज, भूतानी मतलब जो भूत प्रेत की या सामान्य जीव की पूजा करता है, वो भूत प्रेत या सामान्य जीव जहां है वहां जाएगा। करेक्ट, जस्टिफाइड, लॉफुल, उसको जाना है, उसके साथ रहना रहो, भगवान को क्या है। यान्ति मध्याजिप, मध्याजिप, यान्ति मध्याजिप नोपि माम, वन हु वर्शिप्स मी कम्स टू मी। परंतु फर्क क्या है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक तक जितने लोग हैं सब में पुनरावर्तिनो, फिर से मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। माम उपेत्यु तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, बट जो मेरे लोक में धाम में आता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए भगवान अविधि पूर्वक बोल रहे हैं, क्यों जा रहे हो उस प्लेनेट में जहां पे फिर से मरोगे, वापस आओगे, पुनरावर्तिनो अर्जुना, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहो, मत करो, आओ। भगवान की पूजा भी करते हैं और गुरु पूजा भी करते हैं। गुरु तत्व कहाँ पे है? हाँ, गुरु तत्व विधि पूर्वक में है। विधि पूर्वक में उपनिषद वगैरह गुरु की पूजा भगवान के जैसे करने की मान्यता देते हैं। परंतु उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर देते हैं। पहले तो उपनिषद ये कहते हैं कि यस्य देवे परा भक्ति, para means transcendental bhakti, transcendental devotion, not that devotion which is mixed with material desires. I approach God for unmotivated uninterrupted devotion. So जो ऐसे टाइप का डिवोशन, यथा देवे परा भक्ति, परा, परा इसीलिए बोला है कि देव कौन है, परा स्थित देव। यथा देवी, जैसे देव के साथ भगवान के साथ भक्ति है, तथा गुरु, वैसे ही गुरु के साथ भक्ति। तस्य, उसको, एथे, एते मीन्स यहाँ पे, कथित मीन्स बोले गए, अर्थाह, जो उपनिषदों का गहन सार तत्व है, प्रकाशनते, उसका प्रकाश पड़ेगा, उसको समझेगा, महात्मना, ऐसा व्यक्ति महान होता है। तो विधि पूर्वक गुरु की पूजा जो होती है मंदिरों में, वो इस चेतना से होती है कि गुरु और भगवान ये दोनों के साथ ऐसा प्रेम का, वर्शिप का अनइंटरप्टेड अनमोटिवेटेड अप्रोच होना चाहिए। प्रभुपाद इसके लिए उदाहरण देते थे कि भले ही गुरु की पूजा भगवान के जैसे होती है, फिर भी गुरु भगवान नहीं है। हमारे लिए वो भगवान को दिखाना है कि अगर आप परमात्मा मेरे सामने खड़े होंगे तो मैं कैसे आपके साथ डील करूंगा। वो डील करने के लिए चैत्य गुरु
गुरु के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। परमात्मा, आपके हृदय में जो परमात्मा है वही आपके सामने गुरु के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इसलिए वो अभिन्न है, क्योंकि वो गुरु जो है वो परमात्मा से परफेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। वो सुन सकते हैं गुरु भगवान क्या कह रहे हैं, वो देख सकते हैं भगवान को, वो भगवान के साथ संवाद कर सकते हैं, भगवान को आपके बिहाफ पे आपका केस चला सकते हैं, और आपको जो करुणा चाहिए वो दे सकते हैं। जब दीक्षा होती है तो गुरु अपने शिष्य के सारे पूर्वगत जन्मों के प्रारब्ध अप्रारब्ध सारे कर्मों के फल अपने ऊपर लेते, बोलते हैं कि भगवान इसको मुक्त कर दो, मैं ये सारे सहूंगा, मैं इसके लिए नरक में जाऊंगा, इसको छोड़ो, इसको जाने दो आगे। तो ये कंपैशन होता है गुरु का। तो इसीलिए गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। और वो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे खिड़की का। ही इज ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया टू गॉड। ही इज नॉट गॉड, ही इज गॉड, he is opening a window to God, so he is like a window, so that's why he is as good as God because you are seeing God through him, his mercy. So all this is part of teachings of Guru only. Now what I am speaking is coming to you because of Guru, because Paramatma is manifesting the words of Guru through these discourses. So this is like a transparent medium of understanding. So it is, whatever I am speaking is worshipable because it is coming from Guru Shishya Parampara. And therefore I see Srila Prabhupada or my spiritual master as good as stating truth which is spoken by God. They are explaining it so that we understand it. Can we understand what Paramatma is saying now? We don't even know who we are. We can't even perceive our spiritual soul existence now. It's so difficult for us. So Guru connects us to God properly. Or scriptures also say Krishna says that यो मद भक्त न मे भक्त, मतलब जो मेरे भक्त है ऐसे बोलते हैं वो मेरे सही में भक्त नहीं है। जो बोलते हैं कि मैं भक्तों के, आपके भक्तों का मैं भक्त हूं, वो सही मायने में मेरे भक्त है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या रोकेंगे टोकेंगे आपको? गुरु टोकेंगे, गुरु आपको करेक्ट करेंगे। ईगो में गुरु इसीलिए आवश्यक है कि हम सब कुछ ईगो से देखते हैं और गुरु हमारा ईगो निकाल के फेंकते हैं। तो इसलिए गुरु इज अ ट्रांसपेरेंट मीडिया एंड इट इज अलाउड इन विधि पूर्वक वर्शिप। आई होप आई आंसर्ड इट। सो दिस इज क्लियर। जिसको जहां जाना है भगवान उसको वहां भेजने के लिए परमात्मा के रूप में आते हैं। पर जब भगवान को ऐसा बोला जाता है कि नो आई डोंट वांट ऑल दिस, आई वांट यू, देन वो अपने पास बुला लेते। सो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू वंस नेचर, दिस विसा सत्वर रजतम, जो चाहिए उसके हिसाब से लोग करते हैं। तो इसीलिए पुराण भी है अलग अलग। 18 पुराण मेजर पुराण है। 18 पुराणों में कुछ पुराण तामसिक लोगों के लिए, कुछ पुराण सात्विक, कुछ राजसिक के लिए। तो ये जो है कभी कभी दिया है कि भगवान शिव ही सुप्रीम है, काली माता ही सुप्रीम है, गणेश ही सुप्रीम है, वो अलग अलग पुराणों में दिया है। और वो अलग अलग पुराण अलग अलग व्यक्तियों के लिए है। और भगवत गीता जो है सारे शास्त्रों का सार है। तो इसीलिए हम वो जो ट्री निकाल के सब पर्सपेक्टिव देख सकते हैं वो भगवत गीता की वजह से है। और वो सर्वमान्य है, भगवत गीता सर्व आचार्यों को मान्य है, वो भी देखेंगे आगे। तो मोड ऑफ, तो क्या होता है कि भगवत गीता बोलती है कि कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण ऊपर, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण ऊपर, ऐसे स्पर्धा चलती रहती है गुणों में। तो इफ somebody in this life is prominently in mode of passion, he cannot abruptly go in mode of goodness. There is a gradual process. So gradual process from mode of ignorance, just like मैंने वो बोला ना, प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल मैथमेटिक्स, हायर कॉलेज मैथमेटिक्स, वैसे ही through lives the soul reincarnates in different bodies. So in human bodies he may have these three natures and combination of them. So according to nature when he worships,
The scriptures provide him that method of worship. Okay, you want to worship Kali, this is method. You want her to be seen as a supreme, I will give you verses in which you will see her as supreme. तो इसीलिए सब कुछ सिर्फ हम एक ही शास्त्र को प्रमाण देके दूसरे शास्त्र के साथ कॉन्ट्रडिक्शन निकालते हैं, तो वो वही है 2 - 3 = 5 वाला एग्जाम. हम समझ नहीं रहे क्या है सबके पीछे. तो हम पूरा पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो हमें सब कुछ वन थिंग दैट कैन सिंथेसाइज एवरीथिंग. मैंने बोला था ना आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत में, सब कुछ हम सही जगह पे कैसे देख सकते हैं. तो सारे कॉन्ट्रडिक्शंस स्क्रिप्चर्स में जो है वो सारे रिजॉल्व करने की ताकत भगवत गीता में. भगवत गीता ये सब हमें एक्सपोज करके दिखाती है. अभी ये क्या भगवान इसीलिए बोल रहे हैं कि वो स्वयं के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए स्वयं को ऊपर रख रहे हैं. जो है वो बोल रहे हैं. अभी मुझे कहीं बोलना पड़े जाके, मेरे ऑफिस में मेरे ग्रुप में काम करने के लिए कोई नया ज्वाइन किया है, अगर मैं वहां पे जाके बोलूं, मैं तेरा बॉस हूं, तो उसके दो मायने हो सकते हैं. एक हो सकता है मैं बहुत अरोगेंट हूं, पर यह भी हो सकता है कि मैं जस्ट बताना चाहता हूं मैं बॉस हूं. तो भगवान जब बोल रहे हैं तो उनका ये बोलना कि मैं बॉस हूं या मैं सबका श्रद्धा देने वाला, सबका हृदय में सर्वस्वी मैं ही हूं, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सबका मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ आता है. तो ये भगवान का आरोगेंस नहीं है, ये में अपना मिसफॉर्चून है कि हम नहीं जानते, अपने को बताना पड़ रहा है. हम इतने लोली लेवल पे कि हम कौन है क्या है कुछ नहीं जानते. अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा. हम ना तो जानते हैं ना तो श्रद्धा है, श्रद्धा भी भगवान देते. तो इस प्रकार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्क्रिप्चर्स है. तो इग्नोरेंस वाले स्क्रिप्चर्स में क्या होता है, दोज fond of material prosperity approach Shiva for benedictions like Bhaumasur, Vritrasur, perform severe tapasya like cutting or piercing of flesh. देखेंगे ये जो तमोगुणी वर्शिप होती है उसमें वो असुर पूरा अपना हाथ काट के आहुति देता है, ये सब होता है इग्नोरेंस में. भगवत गीता कहती है कि ऐसे टाइप की तपस्या जिसमें अपने ही काया को, अपने ही मन को, अपनी एग्जिस्टेंस को और हृदयस्थ परमात्मा को भी जो पीड़ा देता है, ऐसी तपस्या तमोगुण में होती है. तो तब ये जब ऐसे करते हैं तो वो तमोगुणी है. उसमें भांग, चरस, गांजा पीना, स्मोकिंग करना, मत्स्य 5 M's बोलते हैं, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, मुर और महा, और एक एम कौन सा तो है, तो वो 5 M's से वर्शिप होती है दुर्गा की. मत्स्य ऑफर करके, मदिरा ऑफर करके, तो ये सब इग्नोरेंस है. दिस इज नॉट कृष्णा वांट्स, दिस इज नॉट गुड फॉर अस, बट इट्स अ प्रोविजन फॉर दोज हु कांट कम टू दैट प्लेटफॉर्म. ऑफर एनिमल्स और चिकन इन सैक्रिफाइस टू प्लीज काली. वैसे ही मोड ऑफ पैशन में होता है, परफॉर्म्ड आउट ऑफ हैंकरिंग, ऑनर, डिजायर फॉर मटेरियल एसेट्स, कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी, बिकमिंग वन अल्टीमेट एंजॉयर. हिरण्यकशिपु ने किया था घोर तपस्या. श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है, जैसी तपस्या हिरण्यकशिपु ने की वैसी कभी हिस्ट्री ने कोई कर नहीं पाया था. इतनी भयंकर घोर तपस्या की. रावण ने वैसी घोर तपस्या की, परंतु क्या हुआ उस तपस्या से? इट्स इन पैशन एंड इट इज रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम. तृष्णा, बहुत तृष्णा से ये करते हैं, परंतु रजोगुण फलम दुखम. रजोगुण का फल क्या होता है? दुख होता है. उसका ही उदाहरण है ये लोग. तो इसीलिए भगवान राम चाहते हैं कि अब रावण, वो तो बोलते हैं कि रावण कभी भी मेरे पास आए और बोले कि आपकी सीता आप रखो, मैं आपको शरणागत हूं, मैं उसको माफ कर दूंगा. परंतु उसने सुना नहीं. भगवान को जो चाहिए वो सुना नहीं. उसने वर्शिप की, बट क्या वो वर्शिप विधि पूर्वक है? उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया. उनका रावण का लिखा हुआ स्तोत्र आज भी बहुत रिस्पेक्ट से वैदिक सनातन धर्म के लोग रिसाइट करते हैं, बट क्या वो विधि पूर्वक भगवान की पूजा है? क्या शिव ने उनकी रक्षा की? ये भी प्रश्न है ना. शिव की पूजा की, शिव ने तो फिर धोखा दिया रावण को. बट शिव भी नहीं चाहते ना ये.
शिव नहीं चाहते ऐसा करे कोई। वृत्रासुर ऐसा असुर था, सॉरी वर्कासुर, वर्कासुर एक ऐसा असुर था जिसने भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की, और शिव से ऐसा वरदान मांगा कि मेरे मस्तक, मैं किसी के भी मस्तक में हाथ रखूं तो उसका मस्तक फूट जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। और जैसे ही शिव ने प्रसन्न होके वर दिया, वो शिव के पीछे भागने लगा, शिव के सर पे हाथ रखने के लिए। भागवत में कथा आती है, तो शिव भागने लगे क्योंकि उनका वरदान उन्होंने दिया हुआ है उनके अगेंस्ट। तो ये आसुरी संपदा है। आसुरी व्यक्ति मोड ऑफ पैशन में किसी की कदर नहीं करता। जो कल परसों उदाहरण दिया ना मैंने, माँ पिताजी, पिताजी, माँ बोलती है आपके पिताजी गुजर गए, अभी तो अमेरिका से आओ अंतिम संस्कार के लिए। नहीं नहीं, उधर कर दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो अपने पिताजी को भी नहीं मानते पैशन में, तो शिव को भी नहीं मानते जो शिव के उपासक है। क्या ये वर्शिप डिजायरेबल है, विधि पूर्वक है? नहीं है। तो इसलिए भगवान इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। वर्शिप इन मोड ऑफ गुडनेस इज बेस्ट अमंग द थ्री। और वर्शिप इन मोड ऑफ गुडनेस इफ इट इज अटैच्ड विथ डिजायरलेसनेस, देन इट बिकम्स डिवोशन, ट्रांसेंडेंटल डिवोशन। तो इसीलिए मोड ऑफ गुडनेस इज द बेस्ट पॉसिबल amongst the three, and transcendental worship, by associating this mode of goodness way of worshipping with Supreme Lord, becomes a transcendental way of worship which relieves one from birth, old age, disease, death. So desirable is mode of goodness. हम देवी देवताओं की भी उपासना अगर भगवान के कॉन्टेक्स्ट में डिजायरलेस होके एक परम श्रेय प्राप्त करने के लिए करते हैं तो वो अलग है, और अविधि पूर्वक अलग है। तो इसके डिटेल्स जो है ना, वो आपके गुरु आपको ठीक से बता सकते हैं। वर्शिप इन द मोड ऑफ गुडनेस, इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग इटर्नल रिलेशनशिप विथ गॉड। इट इज रिकमेंडेड वर्शिप ऑफ विष्णु, राम और कृष्णा। सॉरी फॉर दिस, color should be different, or animation is wrongly put. First these statements would have come and then that photo. Worship performed simply by offering tulsi, flower, fruit, water, love as essential part of it. अगर आपली आजी आपल्याला जवळ घेऊन मांडीवर बसवून एक लाडू खाऊ घालते, तर ते आपल्याला कोणीतरी आपल्या बर्थडेला 1000 रुपयाचं गिफ्ट देण्यापेक्षाही चांगलं का वाटतं? तो फरक आहे प्रेमाचा. तर in that same way, the worship, whatever insignificant, even insignificant thing, becomes precious when it is offered with love, and that is essential ingredient in worship in the mode of goodness. Love is prominent, what you give is subordinate. That doesn't mean you can give big thing but you are giving nothing. That is also part of, भगवान कभी कभी बोलते हैं भगवान ये नहीं देखते कितना दिया है, भगवान देखते हैं कितना रखा है अपने पास। तो दैट इज नॉट करेक्ट लव। मैं प्रेम करता हूं पर कुछ दूंगा नहीं आपको। तो इसलिए मोड ऑफ गुडनेस वर्शिप इज पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र मतलब पत्ता। आप देखिए गणपति में या कहीं हम वर्शिप कैसे करते हैं भगवान की, यहाँ पे पत्तों से सजाते हैं। पत्रम पुष्पम फूल, फलम फल देते हैं, तोयम पानी देते हैं। इससे बने हुए इंग्रेडिएंट से एक नैवेद्य बना के भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये सब प्रेम से करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, भक्ति से, प्रयच्छति थी तस्याहम, मैं उसको ग्रहण करता हूं। अश्नामी प्रयतात्मा, अश्नामी मतलब ग्रहण, खाता हूं। प्रयतात्मा ऐसे प्रयत्न पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो मुझे अर्पण करता है वो सब मैं ग्रहण करता हूं। ये मोड ऑफ गुडनेस वर्शिप है। इसका इफेक्ट क्या है? द रिजल्ट ऑफ सच वर्शिप इज प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, and by guidance of a pure devotee one can go beyond the three modes of nature and return back home to God, back to Godhead. तो ये recommended है। तो with this, who should be the object of my worship is our own decision. How should I worship is my own decision, my conscious decision. So loving service, as I said, for pleasure our dharma is service.
ये मानते हैं ना, जैसे धर्म का हमने क्या ये क्या डेफिनेशन, धर्म का डेफिनेशन ये है इनसेपरेबल नेचर, वाटर धर्म इज फ्लोइंग, sugar dharma is being sweet. Similarly, what is dharma of a living being? Serving. We gave example. If somebody says, I don't serve anybody, he has to serve. It cannot be separated. He has to serve his body. If he is sleeping, he is serving his body because he is taking rest, giving rest to his body. He is eating, then he is serving his stomach and his senses. So nobody can live without serving. नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृते, कुछ किए बिना कोई भी रह ही नहीं सकता। श्वास तो ले रहा है ना, तो श्वास ले रहा है तो वो सर्व कर रहा है अपने फुफ्फुस फेफड़े को, ऑक्सीजन का सप्लाई दे रहा है, सर्विंग द बॉडीली पार्ट्स। तो इसीलिए देयर इज नो एग्जिस्टेंस विदाउट सर्विंग अदर्स। Even if somebody is dead, that dead body also serves other living beings. है कि नहीं? डेड बॉडी पानी में फेंक दो तो वो पानी में डेड बॉडी कोई खा लेगा, तो डेड बॉडी सर्विस के लिए है। तो एवरीथिंग इज सर्विस इन दिस नेचर। जीवो जीव से जीवनम, हम माने या ना माने, हमारा जीव, मैं एज ए जीव दूसरे के ऊपर निर्भर हूं, वो मुझे सेवा दे रहा है, और मैं किसी को सेवा दिए बिना हो ही नहीं सकता है जीवन का यात्रा। तो सर्विंग, लविंग सर्विस इज द हाईएस्ट धर्म। सर्विस तो देना ही है, प्रेम से दो तो प्रेम से दोगे तो वो हाईएस्ट हो जाएगा, एंड वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप प्रॉपर होगा तो भी वो हाईएस्ट हो जाएगा। अभी इसके उदाहरण महाभारत में है, कर्ण वॉज गिविंग लविंग सर्विस टू हिज फ्रेंड दुर्योधन, गड़बड़ हो गया। हु शुड बी ऑब्जेक्ट ऑफ माई वर्शिप? सो पीपल who should be object of my service? Some politicians are serving nation, somebody is serving a dog, somebody is serving one who comes to his shop, somebody is serving, like that. We have so many objects of service. Our loving relationships and objects of love are temporary in this material world, but if we focus on the essential spiritual principle which is within, which is part and parcel of Supreme Personality of Godhead, then it is highest worship. Now, last question is, why only Krishna? Why Krishna? Why not others? So, Srila Prabhupada made it very clear that when we say Krishna consciousness, we say all forms of Bhagwan, including Bhagwan Ram, भगवान नरसिंह, भगवान वामन, भगवान के जितने भी स्वांश अवतार, देर आर स्वांश अवतार, विभिन्न अंश अवतार, देर आर तत्व एज आई सेड। तो उसमें जो विष्णु तत्व है वो सबसे उच्च तत्व है, शिव तत्व उसके बाद में है, और उसके बाद में जीव तत्व आता है। तो विष्णु तत्व में भी बहुत ये है अलग अलग तत्व, तो उसमें से when we say कृष्ण then it refers to all विष्णु तत्व, श्रील प्रभुपाद ने कहा है। तो इसीलिए कृष्ण हम रेफर करते हैं। दूसरे कुछ और रीजंस मैं बताऊंगा। कृष्ण, why we do worship of कृष्ण as भगवान। भगवान का जो व्याख्या है ये व्यास मुनि, व्यास देव के पिताजी ने किया है, वो विष्णु पुराण में आता है। भगवान 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 हम बोलते हैं, गॉड, भगवान, भगवान का व्याख्या क्या है? तो ये व्याख्या जो है ये व्यासदेव के पिताजी, नाम भूल रहा हूं, पाराशर मुनि ने दिया है। पाराशर मुनि ने बहुत सुंदर व्याख्या दिया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान विज्ञान चैव षण्णं भग इति गणा। भग का मतलब क्या है? 6 ऑपुलेंसेस, 6 ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके पास है वो भगवान है। तो इसमें क्या क्या आता है? वेल्थ, ऐश्वर्य मीन्स वेल्थ, अनलिमिटेड वेल्थ। तो भगवान का सब कुछ है। भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्ते,
मेरे से ही सब उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए कृष्ण में वो है, वेल्थ है। कोई भी, किसी के पास भी अगर वेल्थ है बहुत, तो वो अट्रैक्टिव होता है ना, वो धीरे धीरे सामान्य लोगों के लिए वर्शिपेबल बनने लगता है। वो जो करता है सभी लोग उसी को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो सबसे वेल्दी कौन है? अनलिमिटेड वेल्थ किसके पास है? और जो कभी भी खत्म नहीं होगी वेल्थ, उसी के पास रहेगी, क्योंकि वो रहेगा। अभी आज कौन है सबसे वेल्दी? आई डोंट नो। या बिल गेट्स है, क्या कोई और है, पता नहीं। हाँ, एलॉन मस्क है क्या? ओके। सो वो एलॉन मस्क, और उसका नाम कितने सालों तक है, और वो कितने सालों तक वेल्दी रहेगा। बट भगवान का ऐसा नहीं है, इटर्नली वेल्दी। तो इलॉन मस्क ऐसा जन्म देने वाले भी भगवान ही है। हाँ? सब कुछ देने वाले प्रदत्त भगवान है। तो इसलिए वेल्थ। दूसरा है स्ट्रेंथ। वी सी सो मेनी स्टोरीज। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण से बलम बलवताम अस्मि, बलवानों का बल मैं हूं, भगवान बोलते। तो भगवान ने एक लेफ्ट उंगली पे, यहाँ पे चित्र है, 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया था। एक पर्वत, एक 7 साल का बच्चा अपने शरीर के सबसे वीक, इसके ऊपर कुछ उठा सकते क्या हम लोग? उंगली के ऊपर उठा रहा है, और 7 दिन 7 रात तक वैसे ही है। लीलया ऐसा शब्द आता है भागवतम में। लीलया मतलब खेलते खेलते, जैसे वो भू छत्र होता है ना, भू छत्र पता है ना, मशरूम। मशरूम कैसा रहता है? उखाड़ना मशरूम सबसे आसान रहता है। कोई भी ऐसे बच्चा खेलते खेलते मशरूम उखाड़ सकता है। वैसे भगवान ने लीलया इस पर्वत को अपनी उंगली पे उठा के धारण की, खेलते खेलते, ऐसा वर्णन आता है। तो ये है शक्ति भगवान। और जो भी गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य अहम ओजसा, भगवान बोलते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे कि ये सारा इतने सारे प्लैनेट्स है वो फ्लोटिंग है हवा में, वो जो स्ट्रेंथ है वो मैं हूं, भगवान बोलते हैं। हवा में ऐसे ही पृथ्वी ऐसे तैर रही है, वो स्ट्रेंथ भगवान है, और इटरनली तैर रही है। तो ये भगवान की शक्ति है। तो हम अगर किसी को भी भगवान बोलना चाहते हैं ना, तो ये प्रश्न हमें पूछने हैं, क्या उसने 7 साल में ऐसा पर्वत उठाया था? अर्जुन ने जब सुना कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, तब उन्होंने बोला कि मुझे वो देखना है कि आप कैसे भगवान हो। तो भगवान ने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया कि मेरे में ही कैसे सब कुछ है, वो आगे देखेंगे। बट फेम, कृष्ण इज मोस्ट फेमस। कृष्ण इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कृष्ण मूर्ति जो है भगवान कृष्ण की, ये सारे जगत में जगह जगह पे मिली है। तो इसलिए कृष्ण इज मोस्ट फेमस। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, भगवान बोलते हैं, वेदों में किसे जानना है तो मुझे ही जानना है, ऐसे। तो फेमस, वैसे ही ब्यूटीफुल, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ऐसे बोलते। कामदेव से सब आकर्षित होते हैं, बट कामदेव को भी मूर्छित करने वाला सौंदर्य भगवान कृष्ण का है। एक बार कामदेव ने भगवान कृष्ण को अपने बाणों से घायल करने के लिए टारगेट किया, और जब वृंदावन में भगवान लीला कर रहे थे, तो कामदेव ऊपर चढ़ के बैठे एक वृक्ष में, और उनको बाण मारने वाले थे। जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा, वो बाण के साथ पेड़ पे से नीचे गिर गए। उनका सौंदर्य देख के मतलब स्पीचलेस, मोशनलेस गिर गए, वो सब भूल गए, बाण और ये सब। और ये काम जो है उसका स्रोत ही भगवान कृष्ण है। धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभा, भगवान बोलते हैं, धर्म के अविरुद्ध, धर्म के विरुद्ध जो नहीं जाता है वो काम मैं हूं, भगवान बोलते हैं। काम को कंडेम नहीं किया है, धर्म के विरुद्ध काम को कंडेम किया। पति पत्नी का एक दूसरे के साथ जो काम का संबंध होता है, वो अगर धर्म के रूप में है तो वो अधर्म नहीं कहलाता है। एक जीव को शरीर प्रदान करना और उसको मुक्ति के लिए मदद करना, ये पिता और माँ का कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य करने के लिए जब वो एक साथ आते हैं, तो उसको काम नहीं कहते, उसको प्रेम ही कहते, वो भगवान का रूप है, ऐसा बोलते। तो
एक उदात्त क्रिया कही जाती है अगर वो धर्म पूर्वक की जाती है, वो भगवान का स्वरूप है वो क्रिया। तो इसीलिए वो हम बीज प्रद पिता बोलते हैं ना भगवान की, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो जब इस रूप से देखा जाता है तो वो काम नहीं है। तो इसीलिए भगवान जो है वो सौंदर्य के प्रतीक है और सौंदर्य का अंश प्रकट करते हैं ताकि ये सृष्टि चले। वो पिता वो है, तो वो आकर्षण की जो शक्ति है, सौंदर्य की जो शक्ति है वो उनमें अनलिमिटेड है। हम उस सौंदर्य का थोड़ा अनुभव करते हैं। परवर्टेड रिफ्लेक्शन, परवर्टेड मतलब जो हमने देखा ऊर्ध्वमूलम अधश्चातम, पानी में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी सुंदर लगता है ना भगवान का। तो वो है, सब कुछ जो सुंदर है वो भगवान का एक अंश मात्र है। तो भगवान का सौंदर्य अनलिमिटेड है, भगवान का नॉलेज अनलिमिटेड है। वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो, मैं सारे वेदों से जानने वाला व्यक्ति मैं हूं। हाँ, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञान बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञान ग्रहण करता है वो मुझे शरण आता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत का संकलन करता मैं ही हूं, वेदों से जानने वाला मैं भी हूं, वेदों को प्रकट करने वाला भी मैं ही हूं। तो नॉलेज का पूरा स्रोत भगवान है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेत्त न कश्चन। वेदाहम मैं जानता हूं, क्या? समतीतानि जो पहले हो चुका है, वर्तमानानि जो अभी हो रहा है, भविष्याणि च किसका? भविष्य, वर्तमान, भविष्य और भूत किसका जानता हूं? वेदाहम समसीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि, सबका, सारे जीवों का सब कुछ मैं जानता हूं। आप आज से 1000 जन्म बाद कहां पे होंगे भगवान आज जानते हैं। हम 1000 जन्म पहले कहां थे, और आप अगर पूछो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान बोलेंगे 10,50,0726वें जन्म में इस दिन में इस व्यक्ति के साथ आपने इस तरह से किया था, इसलिए आज आपके साथ ऐसा हुआ। ये शक्ति है भगवान की, ये ज्ञान है भगवान का अनलिमिटेड। और ये प्रश्न आप में से सब क्या, पूरी सृष्टि के सारे जीव भी पूछेंगे, सबके लिए भगवान के पास उत्तर है। वो भगवान है अनलिमिटेड, रिनंसिएशन, ये सब होके भी भगवान विरक्त है। भगवान कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलते हैं क्या किसी को मेरी भक्ति कर? आप भक्ति करो ना करो, आपको दे रहे हैं ना सब। इसको बोलते हैं विरक्ति। सबसे विरक्त है भगवान, अनलिमिटेड विरक्त है। अनलिमिटेड काल तक आप उनके बारे में सोचो मत, फिर भी वो आपका भरण पोषण करेंगे। ये उनकी विरक्ति है और ये उनका प्रेम भी है। तो इस तरह से जिसमें ये सब है अनंत काल के लिए अमर्याद रूप में, उसे भगवान कहते हैं। तो हमें ऐसा चीप कोई भगवान नहीं चाहिए जिसमें ये कुछ नहीं है और वो खुद को भगवान बोल रहा है, कुछ मिरेकल दिखा रहा है और भगवान बोल रहा है। तो नाउ इज गॉड पर्सन और सम लाइट, ये अभी विधि पूर्वक में आया। तो उसमें आता है कि ये उदाहरण, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसके बहुत सारे ऑफिसेस पूरे जगत में है। तो ये कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट, इसका क्या अस्तित्व एक इम्पर्सनल नहीं है, सर्वत्र है माइक्रोसॉफ्ट। परंतु इसका मतलब ये होता है सर्वत्र है तो इसके बिहाइंड कोई नहीं है। कौन है इसके बिहाइंड? सो फॉर एनीथिंग देयर इज अ पर्सन, और एनी क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। तो वो पर्सन इज कृष्ण अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। हु इज दैट पर्सन? दिस स्मॉल बॉय प्लेइंग विद बॉल्स। वो कितने महान हैं कि वो आराम से खेल रहे हैं। कितना बिल गेट्स को टेंशन हुआ रहेगा जब उसको बनाना पड़ता होगा। सब, किसी को भी कुछ क्रिएशन डिजाइन करना है तो उसको बहुत मुश्किल है, मेंटेनेंस तो और भी मुश्किल है। पर ये बच्चा ये सब कुछ करके हुए भी आराम से मजे में खेलता रहता है। ये शक्ति है भगवान की। तो ये इसका सब जो वैदिक सनातन धर्म के जो तत्व है उनका सब, मैंने जो भी बोला उन सब का यहाँ पे शब्द प्रमाण है।
तो कृष्ण बोलते हैं कि हम सर्वस्य प्रभो, ये देखा हमने कि मेरे से ही सब कुछ आया है, और मेरी भक्ति में वो लगता है जो ये सत्य जानता है। हाँ, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, मैं ही प्रकृति तैयार करता हूँ, उसका विसर्जन करता हूँ। और सारे जीव विवश होके मेरे में आते हैं और मेरे से ही प्रकट होते हैं। अहम यच्चापि सर्वभूताम बीजम तद अहम अर्जुन, सारे जीवों में बीज रूपी मैं ही हूं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये प्रकृति जो चल रही है मेरी अध्यक्षता से चल रही है। और गामा विश्व च भूतानी, मैं ही सारे प्लैनेट्स को एक साथ रखता हूं, ये शक्ति मेरे से ही आ रही है। जो भी यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तद्देवाद गच्छत्वम मम तेजोंश संभवा, जो भी बड़ा ऐसा ऑप्युलेंस मतलब जो ऐश्वर्य दिखाए, जो भी ऐसा ऐश्वर्य आपको जहां पे भी सुंदरता, ऐश्वर्य और ग्लोरियस महान ऐसी क्रिएशंस दिखती है, वो सारे बट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, वो सारे बड़ा अग्नि में, जैसे एक अग्नि का चितकण होता है, छोटा सा कण होता है, या बड़े समंदर में एक जैसे पानी का एक छोटा सा बूंद होता है, वैसे ये सुंदरता, ये विविधता, ये महानता, ये सब मेरे से प्रकट हुआ एक छोटा सा कण है। जब हम किसी सुंदर व्यक्ति को देख के पूरा ये हो जाते, स्तंभित हो जाते हैं, तो वो सौंदर्य भगवान कृष्ण का एक इनसिग्निफिकेंट पार्ट है। किसी की बुद्धि देख के हम चकित हो जाते, तो वो बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूं। तेज तेजस्वी नाम हम, किसी का तेज आप देखते हो, वो तेज भगवान का तेज का एक स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर। तो इस तरह से हम जहां जहां आकर्षित होते हैं वहां पे हम भगवान को देख सकते हैं। ऐसे ही इतना ही भगवान नहीं बोलते, द्यूतः छलयताम अस्मि, छल करने वाले में सबसे कपटी मैं द्यूत क्रीड़ा हूं। भगवान द्यूत भी मतलब एक छल भी कर सकते हैं, कपट भी कर सकते हैं। आप कपटी हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव, भगवान के साथ कपट कर रहे हो ना, भगवान ऐसा कपट चलाएंगे समझेगा भी नहीं क्या हुआ, किसने किया, और पूरा छल लेंगे। तो भगवान बोलते द्यूतम छलयताम अस्मि, द्यूत क्रीड़ा जिसने पांडवों को छला, वो भगवान स्वयं अरेंज कर रहे थे। क्या प्रभाव था उसका, देवी देवताओं के पुत्र थे सब, लेने के देने पड़ गए द्यूत क्रीड़ा की वजह से। महाभारत में भगवान बोलते हैं मैं वहां पे नहीं था और मेरा कंसल्टेशन नहीं लिया गया, इसीलिए द्यूत क्रीड़ा का ये भयंकर प्रसंग आपके ऊपर आया। भगवान तब किसी युद्ध में थे और युद्ध में थे, तो इसीलिए पांडवों का उनके साथ संपर्क नहीं हुआ। पर उसी द्यूत क्रीड़ा से जो वस्त्रहरण द्रौपदी को हुआ, तब भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हुए। ये भगवान की अनलिमिटेड शक्ति है। आप भगवान को कंसिडर नहीं करते हैं तो द्यूत क्रीड़ा जैसे छले जा सकते हैं। भगवान को जैसे स्मरण करते हो भगवान आ गए। तो ये है यद यद विभूति, इतनी विभूतियां है, विभूति योग करके पूरा चैप्टर है भगवान का भगवत गीता में। हाँ, तो नॉट ओनली ही क्लेम्ड हिमसेल्फ बट ही शोड दैट ही इज गॉड। मां को दिखाया विश्वरूप, अपने मुंह में पूरा विश्व दिखाया, अर्जुन को दिखाया विश्वरूप। यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, आप सबसे परम ब्रह्म हो, परम धामम सबसे बड़े हो। और ये सिर्फ पुरुषम शाश्वतम, शाश्वत पुरुष हो, मेरे जैसे मर्त्य पुरुष नहीं हो, शाश्वत हो। आदि देवम, सारे देवी देवताओं के भी आदि हो। और मैं ही ऐसा नहीं कह रहा, आहु त्वाम ऋषय सर्वे, सारे ऋषि मुनि इसको एग्री करते। देवर्षि नारद, देवर्षि देवों के ऋषि भी नारद है, वो भी इसको एग्री कर। नारद देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास, व्यास मुनि तो सारे वेदों के संकलन करता है। हम ये सब नाम कहां से सुनते हैं, गणपति, गणेश, शिव, रुद्र या लक्ष्मी या विष्णु, वेदों से, वेदों में है। तो वेद संकलन करता व्यास मुनि भी इसको मानते हैं कि आप ही आदिदेव हो, भगवान हो, सबके भगवान हो। हाँ, व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, अभी आप भी मुझे वही सत्य बता रहे हो। हाँ, नॉट ओनली दैट,
अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगाः ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थम ऋषिंश्च सर्वान् उरुगांश्च दिव्या। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं आपके ये अद्भुत विराट रूप में ब्रह्मदेव को देख रहा हूं। ब्रह्मांडम, ईशम मीन्स शिव को देख रहा हूं। आपके ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, वहां पे एक कमल दिख रहा है ना, उस कमल के ऊपर आस्थित स्थित ब्रह्मा को भी मैं आपके रूप में देख रहा हूं, और भगवान शिव को भी मैं देख रहा हूं इस रूप में, और सारे ऋषियों को भी इस रूप में देख रहा हूं। तो आप में सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मदेव सब स्थित है, ये मैं देख रहा हूं। तो ये दिखाया भी भगवान ने कैसे वो आदि देव है। तो ब्रह्मदेव जो सबसे प्रमुख देव है, जो इंजीनियर है इस सृष्टि के, और भगवान के पहले पुत्र है, शिव से भी पहले पुत्र है, वो भी क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण है भगवान कृष्ण है, और वो परम ईश्वर है, और वो सच्चिदानंद है। वैष्णवानम यथा शंभु, शंभु मतलब शिव जो है सबसे उत्तम वैष्णव है, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। और ये ब्रह्म संहिता में ये उदाहरण दिया है, क्षीरम यथा ददा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतोः हो यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद आदि पुरुष भगवान कृष्ण, आप वो हो मानो आप क्षीरम, आप दूध का रूप हो, यथा दधि विकार विशेष योगा, जैसे दूध का परिवर्तन दही में होता है, खट्टे चीज के साथ दूध मिक्स किया जाए तो वो दही में कन्वर्ट होता है, वैसे ही आप शिव के रूप में कन्वर्ट हो गए। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति है। तो इस विश्व का प्रलय लाने के लिए आप दूध जैसे दही में परिवर्तित होते हैं, वैसे ही आप शिव में परिवर्तित हो गए। तो दूध पहले है कि दधी पहले है? तो गोविंदम आदि पुरुषम, ये बोल रहे हैं ब्रह्मदेव कि गोविंद आप ही शिव बन जाते हो, परंतु दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता, इसीलिए मैं आपको पूजा करता हूं गोविंदम आदि पुरुषम, आप आदि पुरुष। तो इस तरह से भगवान कृष्ण की महिमा है। ऐसे ही गणेश जी के बारे में भी बोला है कि जो अपने मस्तक पे आपके चरण कमल को धारण करता है और आपसे ही विघ्न विनाश की शक्ति प्राप्त करता है, वो आदि पुरुष भगवान गोविंद, मैं आपको शरणागत हूं। तो सारे देवी देवताओं की शक्ति ये भगवान से, भगवत गीता बोलती है कि जो जो तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, जो जो देवी देवताओं से उपासना करता है उनसे प्राप्त होने वाले फल मेरे से ही प्रदत्त है। भगवान बोलते देवी देवता जो फल दे रहे उपासना का, वो फल मैं ही एक्चुअली में देता हूं, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो देवी देवता भी गुरु के जैसे ही ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है भगवान के। तो इसीलिए ये भगवान विष्णु रूपों में भी बोलते हैं, व्यासदेव बोलते हैं सारे विष्णु रूप, सारे विष्णुओं की कथा है श्रीमद् भागवतम में। सारे विष्णुओं की कथा बताने के बाद व्यासदेव बोलते हैं एते चांस कलपुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब मैंने जो डिस्क्राइब किए ये विष्णु के अलग अलग रूप, ये सारे विष्णु के रूप भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है मूल, और उनसे ये कैसे प्रकट होते हैं, जैसे चंद्रमा से अलग अलग कलाएं प्रकट होती है। एक पूर्ण चंद्रमा पौर्णिमा को प्रकट होता है, उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा प्रथमा तक उसकी कलाएं छोटी 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 होती जाती है। तो जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रूप प्रकट होता है तो वो कृष्ण रूप पूर्ण पौर्णिमा के चंद्र के जैसा है, अमर्याद रूप, वो अमर्याद लीला करते हैं। परंतु भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं तो वो सारी लीलाएं प्रकट नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक कला प्रकट करते हैं भगवान। नरसिंह देव, लक्ष्मी जी उनके पास जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए डरती है, उनकी पत्नी है, पर वो लक्ष्मी जी के साथ
प्रेममयी आदान प्रदान करने के रूप में नहीं है, तभी वो उग्र रूप में है। और वो अपने छोटे बछड़े, छोटे से क्या बोलेंगे उसको, कब, कब मतलब सिंह का बच्चा, वैसे देख रहे प्रहलाद को। और उसके ऊपर ये हिरण्यकशिपु अन्याय कर रहा है, तो उसको फाड़ के खाने वाले, फाड़ के उन्होंने सारी आंतड़ियां ऐसी पहनी थी माला की जैसी। तो ऐसे उग्र रूप में कोई पत्नी अपने पति के साथ प्रेम का संवाद करना चाहेगी? तो ये कला कृष्ण प्रकट कर रहे हैं, राम प्रकट कर रहे हैं, तो वो कला है एक। तो वैसे ही मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कहा गया, उनसे ही अंश प्रकट होते हैं। तो इसीलिए विष्णु पहले या भगवान कृष्ण पहले, इसका उत्तर कृष्ण पहले ये है। अभी इस रूम में अगर कोई आता है तो वहां से आने वाली व्यक्ति पहले जो आएगी यहां पे बैठेगी, दूसरी जो आएगी बाद में बैठेगी, तो हम उसको बोलेंगे पहला ये आया है। परंतु इसका मतलब इस रूप में जो आता है वो पहले इस दुनिया में आया, ऐसा है क्या? कोई वरिष्ठ व्यक्ति पहले आ सकता है, दूसरा कनिष्ठ बाद में आ सकता है, या कनिष्ठ पहले आ सकता है, वरिष्ठ बाद में आ सकता है। तो इसी तरह अवतार जिस तरह से प्रकट भूमि में होते हैं, उस तरह से वो पहले और वो दूसरे ऐसा नहीं हो सकता। वो इटरनली आते जाते हैं, प्रकट अप्रकट होते हैं। जैसे सूर्य अप्रकट हुआ मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। रात को सूर्य दिख नहीं रहा मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। वो सही वक्त पे सही देश में प्रकट होता है। उसी तरह से भगवान के अवतार प्रकट अप्रकट होते रहते। तो इसीलिए विष्णु पहले है और भगवान बाद में, ऐसा नहीं है। विष्णु पहले आए, उन्होंने मटेरियल क्रिएशन किया उन जीवों के लिए जो जीव बद्ध होना चाहते प्रकृति में। इसीलिए विष्णु हमारे लिए बद्ध जीवों के लिए पहले है। परंतु इटर्नल धाम में विष्णु का अस्तित्व भगवान कृष्ण से प्रकट हुआ है। इसीलिए भगवान कृष्ण जब विष्णु के रूपों में प्रकट हुए, ऐसे शास्त्र बोलते हैं, तो वो ऐसे ही दरवाजे से अंदर आए जैसा है, विष्णु के दरवाजे से अंदर आए, इसीलिए विष्णु का रूप बोलते हैं। परंतु उनका रूप विष्णु से पहले है। ये है इस तत्व का ज्ञान शास्त्रों से। और ये सब ग्रेट आचार्य जितने हैं उन्होंने कंफर्म किया। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, श्रीपाद शंकराचार्य, सर्व ने, सबने एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो इसका मतलब क्या है? एक ही शास्त्र हम बस है अपने लिए, परिपूर्ण है। क्या? देवकी शास्त्र, देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र कौन है? कृष्ण। उनका गीत क्या है? भगवत गीता। एक ही शास्त्र बस है, शंकराचार्य बोलते, इतना परिपूर्ण है वो। एको देवो देवकी पुत्र एव, देवकी के पुत्र ही एक देव बस है। सारे देवी देवता अलग अलग वैसे ही है जैसे अलग अलग ब्रांचेस को पानी देना। यथा तरोर मूल निषेचन, तरो के मूल में जैसे पानी दो तो सबको पहुंचता है, वैसे ही भगवान को दिया तो ब्रह्मा जी को, शिव को, सबको पहुंचता है। और एको मंत्र, सारे मंत्र इतने सारे अलग अलग करने की जरूरत नहीं, एक मंत्र काफी है। तस्य नामानि यानि, भगवान के नाम का जाप। और कर्माणि एको तस्य देवस्य देव, एक ही कर्म बस है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए बस। तो ये सफिशिएंट है, शंकराचार्य बोल रहे हैं, और यही सारे आचार्य बोल रहे हैं। तो इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टुडे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये मैं बोल रहा था, काम स्तर अपहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य देवताओं के पास जाते हैं, काम से कुछ काम का मांगने के लिए जाता है, और वैसे वैसे नियम बनाते हैं और या पालन करते हैं। ये भी मैंने बोला, अव्यक्त नहीं हूं मैं, व्यक्ति हूं। तो इस तरह से भगवान की सेवा के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य निवेदनम, आत्मनिवेदनम, ये सारे 9 मेथड्स है, नवविधा भक्ति के। तो अभी वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्स। नाउ प्रैक्टिकली टेक होम इज समथिंग दैट यू विल डू, स्टार्ट डूइंग विद दिस नॉलेज। तो हमें क्या करना है? आदौ साधु संग ततो, नहीं, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। आप श्रद्धा से सुने, आपने साधु संग किया। साधु का संग मतलब
जो ये सारे साधु हमें बता रहे हैं वो सब आपने सुना, और उसके बाद भजन क्रिया आपको शुरू करना पड़ेगा। तो साधना शुरू करना पड़ेगा। साधना मतलब क्या है? जब शास्त्र अध्ययन और भक्तों से सुनना, जो अपने से ज्ञान वृद्ध है, तपो वृद्ध है, जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, जो श्रद्धा आपसे शक्तिशाली है, जिनके पास कथा करने की विशेष प्रचार करने की शक्ति है, उनसे आप सुनना। तो ये 4 डूज है ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज रेगुलरली, ए इससे ही सब शुरू होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। B इज बुक्स रीडिंग, C इज चैंटिंग ऑफ नाम, होली नेम, D इज डाइट। जो भी खाते हो कृष्ण भगवान को अर्पित करो और खाओ, और जो कृष्ण भगवान को चलता है वही अर्पित करो और खाओ। तो वो शुद्धिकरण करता है, शुद्ध करता है हमारी चेतना को। हमारी चेतना अभी अन्नमयी चेतना है, तो हमें शुद्ध शुद्ध चेतना के लिए अन्न को शुद्ध पहले करना है। ठीक है, तो अभी इतना टाइम हो चुका है कि हम अभी ना तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, और कुछ टेक्निकल इश्यू भी हुआ है, सर्टिफिकेट्स आए नहीं है। तो क्या मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर सकता हूं कि आप सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या तो नेक्स्ट वीक या तो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद एक स्पेशल कार्यक्रम रखेंगे, उसमें आए, चलेगा? तो तब तक आप थोड़ा सा ABCD शुरू करो। क्विज भी हम उसके उसी वक्त लेंगे, क्विज। ठीक है, अभी टाइम हो गया ना? ये थक तो नहीं गए? हाँ, नहीं तो लेंगे स्पेशल क्लास में, स्पेशल इसमें क्विज लेंगे। हाँ, आज बहुत सुना उन्होंने मेरा सहा इतना, इतने दिनों तक 6 सेशंस, इतना हेवी फिलोसॉफी। मुझे कभी कभी भक्त लोग बोलते कि आप इतना फिलोसॉफी बोलते हो, पता नहीं कितने लोगों के ऊपर से सर के जा रहा है, वो सुन रहे कि सह रहे पता नहीं है। वो फीडबैक आप देंगे मुझे, अभी देना है पर्सनली तो दो, नहीं तो हम वो स्पेशल जाएंगे ना, तब हम आपसे फीडबैक पूछेंगे। आप आगे आके भी आपका फीडबैक दे सकते हो, जेन्युइन फीडबैक, आपको जो भी लगता है। नहीं नहीं प्रभु जी, आपने इतना सारा बताया ना, मेरा हर वक्त सर दर्द हुआ है और 2 दिन तक वो सर दर्द उतरा नहीं है, ये भी फीडबैक दे सकते हो। और अगर ऐसा लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं किसी और दुनिया में चला गया, अभी मैं बदल चुका हूँ, अभी वो मैं बहुत अच्छा वर्षन मेरा मैं प्राप्त कर चुका हूँ, तो वो ऐसा भी फीडबैक दे सकते हैं, जो भी है जेन्युइनली। या ये बहुत ज्यादा हो रहा है, 3 घंटा 3.5 घंटा, इसको और कम होना चाहिए। क्या होता है मालूम है, ये हमारा टीम जो है ना, वो कंटिन्यूअसली रिसर्च करता है कि लोग ज्यादा उपस्थित कब रहते हैं। क्या वो कंटिन्यू 6 रविवार आते हैं? क्या वो 1 घंटे से संतुष्ट होते हैं? 1 घंटा रखा तो फीडबैक आता है कि ये बहुत कम है, हम इतना दूर से आते हैं, 1 घंटा में कुछ भी सुन के नहीं होता, कुछ भी ठीक से नहीं सुना। 2 घंटा रखते हैं तो बोलते हैं कि, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है 2 घंटा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ज्यादा हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं 2 घंटा कैसा चला गया हमको पता ही नहीं, हम सिंसियरली सुनने को आते हैं और ये पूरा सारे एंगल से नहीं हुआ, यहाँ पे ये मिस हो गया, वहां पे वो मिस हो गया। तो इस स्ट्रगल में ये हमारा रिसर्च वाला टीम कुछ तो अरेंज करते रहता है, और हमने बहुत कुछ सीखा नहीं है, बहुत कुछ सीखा नहीं है। हमने कितना सीखा 6 सेशंस में? ये सब सीखने के लिए 10-12 साल लगते हैं, और ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा ने इसको इफेक्टिवली प्रेजेंट किया है। ये इतना वेदों का सार इतने क्विकली समझना, ये बहुत मिरेकल है। आज कलयुग की बुद्धि को समझना, ये बहुत बड़ा मिरेकुलस चीज है। तो इसीलिए शायद आपके ऊपर पूरा ऐसा 3-3.5 घंटे का बहुत स्ट्रेच हो रहा हो, बट आपने फिनिश कितना किया है सिलेबस? 10-12 साल का सिलेबस फिनिश किया है। आप एक बहुत जबरदस्त लेवल पे आ चुके हो, अभी आप असामान्य व्यक्ति हो चुके हो। आपको ये सिर्फ ऐसा ही फ्लैबरकास्टिंग या चने के झाड़ के ऊपर चढ़ा नहीं रहा हूं, मैं जेन्युइनली स्क्रिप्चरल बोल रहा हूँ, वैदिक शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ। या आपने जो सिलेबस कवर किया है ना, वो एक्सेप्शनल है। इसीलिए इसको थोड़ा सा उस एंगल से भी देखिए कि बहुत मिला है। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने पेशेंटली यहाँ पे इतना ऑडियंस दिया। यू टुक योर टाइम आउट ऑफ योर lovely Saturdays and Sundays, which you deserve for taking rest, going to cinemas or going for shopping or enjoying elsewhere. But you sincerely attended this
came, heard patiently, gave your heart here, and tried to understand what scriptures say, what Krishna says, what Guru Shishya Parampara says, and what is your own nature, what is your real identity, and what is the road ahead. So, all these are valuable gifts of God, and I'm happy that I could be a via medium for giving you this gift, taking it from one hand, giving in multiple hands. So, you all of you, please pray for me. I am also one amongst you, a very struggling sadhak. I am also trying to follow ABCD, and we need prayers of each other to maintain a spiritual life. We need an atmosphere, we need a temple, we need devotees, we need guidance, we need personal interaction, personal guidance. The path, as it sounds so beautiful, is difficult to live in this situation, in this material world. So we need helping hands. This temple is for you. We are always there to serve you. Our Guru Shishya Parampara is with you. With the Guru Shishya Parampara, whole power of God, you are connected with that power. So don't just disconnect from this power now onwards. Otherwise, just like as long as these bulbs are connected to powerhouse, they glow. As long as you are connected to Guru Shishya Parampara, you will have spiritual consciousness. Once you disconnect, your spiritual consciousness will just go like that. Because कभी कभी उपनिषद बोलते हैं कि जैसे अग्नि का स्फुल्लिंग अगर पड़ जाता है, विभक्त हो जाता है, तो वो अग्नि नहीं रहता. उसी प्रकार अध्यात्म जो है, आध्यात्मिक सत्संग में ही अध्यात्म रह पाता है. दुस्संग में विनाश होता है. तो इसीलिए बी हियर, कम हियर, टेम्पल इज योर्स, कृष्ण इज योर फादर, योर मदर, माय फादर, माय मदर, माय ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडफादर. Krishna is everything for all of us. Krishna is not for only those brahmacharis who are there. It is for whole Pimpri Chinchwad, whole civilization. Everybody can come to their father and pray. But it's the matter of connecting him, connecting all of us to him in that capacity of loving relationship. So that is the purpose of this whole business. And all of you are therefore always welcome. And you are welcome to the family of Vaishnava devotees. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय. श्री श्री गौर निताई